Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Ali Nasser, for brief introduction and so many things you have stated. Thank you. Uh, Before coming here, I have been told that I have 3 minutes. So मैंने कहा यार 3 मिनट में तो सलाम दुआ होगी, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकते. So first of all, I would like to welcome and I'm grateful for all the worthy guests and our professional excellence group chairman, engineer Wasim Nazir Sahab, candidate for Pakistan Engineering Council chairman, election 2021. Our vice chairman, candidate for South, Captain Sarfaz Sahab, and all honorable guests. Assalamu alaikum. बहुत सारी बातें मुझे करनी थी, but time constraint है. So Pakistan Engineering Council was formulated in 1976 for regulating engineering programs and disciplines in Pakistan. And then in 2011 they have some amendments in the statute. So this election is somehow different in terms that our group, Professional Excellence Group, is a non-political and purely professional group for engineers contesting for this election. Besides so many political affiliations, so many groups are claiming that they have such kind of supports which are available at government level or regional level, linguistic discrimination, religious discrimination. We are above all this. We only prefer the professionalism and the quality of the engineer life and social economic values in the region and at national level of Pakistan and regional level. So we are with Professional Excellence Group and under the leadership of our dynamic leader, Engineer Nazir Saab. We are very much hopeful and we make ensure to the engineer that the prestige of the engineers will be much more as they are expecting. Okay. Talking about the educational excellence, I would like to draw some points regarding OBE, outcome-based education, which you people are better familiar that this was the flagship of our previous regime. So outcome-based education was introduced in 2017 and Pakistan was the signatory in 2017 and we are right now the member. So having, the experience and hands-on knowledge of this system, I have seen so many flaws, I have seen concerns, I have seen issues in this system. And without indulging itself how to address the concerns and the issues academia has been facing, they are just minting, they are just following the line. मैं आपसे थोड़ा सा खुल के बात करता हूँ. आउटकम बेस्ड एजुकेशन में जो इंजीनियर्स की, बिकॉज इंजीनियर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आते हैं और आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक गाइडलाइन, एक रोड मैप देना है जिससे वो एक प्रोफेशनल क्वालिटी इंजीनियर जो है वो प्रोड्यूस करे. सबसे बड़ा फ्लॉ जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि जो पूरा साइकिल है ओबीई का वो 4 साल के बाद कंप्लीट हो रहा है आफ्टर ग्रेजुएशन. हाउ कम वी एवेल्युएट इंजीनियर्स आफ्टर 4 years ऑफ ग्रेजुएशन? इंजीनियर पता नहीं यहां पर होगा, पाकिस्तान में होगा, बाहर होगा, कहां होगा, और हम उसका जो CQI प्रोसेस है, कंटिन्यूअल क्वालिटी जो उसकी प्रोसेस है, उसको हम
एवेल्युएट कर रहे हैं 4 साल के बाद। तो दिस इज नॉट रैशनल। सेकेंडली, अगर आप उसके अंदर देखें तो जो आपके विजिट टीम आती है पीसी की, जब बैच ग्रेजुएट हो रहा होता है तो वो आके उसको एवेल्युएट कर रहे होते हैं। दिस इज नॉट द वे। You have to monitor, you have to evaluate engineers in the first year, and gradually you check the quality improvement, the concern you mentioned in the second year, third year and fourth year. आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं फाइनल ईयर के बाद जाके। तो ये सारे इश्यूज हैं जो हमने देखने। एक और जो बड़ा मसला है जो कि एकेडमिया फेस करती है, और यहाँ पे माशाल्लाह इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, हमारे इंडस्ट्रीज के लोग बैठे हुए हैं। There is a big gap between industry and academia, and you all are familiar कि इंडस्ट्रीज और एकेडमिया के दरमियान जो ब्रिज है वो कितना, आप जानते हैं कि कितना वाइडन है और कितना उसके अंदर लूजली पैक्ड है। वो फॉर एकेडमिशियन जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो बिल्कुल क्लोज है, क्लोज डोर है। यू हैव टू थ्राइव। आपको अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स निकालने पड़ते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर बच्चों को इंटर्नशिप कराने के लिए। कोई यूनिवर्सिटी के अंदर फिक्स प्रोग्राम नहीं है इंटर्नशिप का, और आपने ओबी सिस्टम के अंदर आईबीए के इतने सारे डेफिशिएंसीज दी हुई है, एक भी डेफिशिएंसी आ जाए तो आपका प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता है। इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो कल्चर है और जो रिलेशनशिप है उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में स्ट्रेंथन करना है। ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाके और इंडस्ट्रीज के चक्कर लगाएं, वहां पे चेयरमैन जाके और वहां पर डीन जाके इंडस्ट्रीज के अंदर बैठेंगे, भाई हमारे बच्चों को आप इंटर्नशिप दे दो। ये तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जिम्मेदारी है, और इंशाल्लाह ताला पीजी जो है इसको बहुत अच्छी तरह लुक आफ्टर करेगा। इसके अलावा अगर आप देखें जो भी हमारे पास पीसी का, जो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग 12 साल हो गए मुझे पीसी के साथ इंटरेक्शन करते हुए। कितने ही प्रोग्राम मैंने एग्रीडेट किए एज अ प्रोग्राम एवेल्युएटर। मैं इनकी पीआरओ कमेटी में भी रहा। बहुत ब्यूरोक्रेटिक मुझे इस्लामाबाद का माहौल लगता है। कैन यू इवन इमेजिन कि मेरे प्रोग्राम जो था वो एक बहरिया यूनिवर्सिटी का पावर सिस्टम का वो एग्रीडेट नहीं आ रहा था एसआरओ के अंदर। एसआरओ जो निकलता है हर साल। तो आई वेंट टू इस्लामाबाद फ्रॉम कराची, और मैंने उनको बताया कि मेरे पास लेटर है कि मेरा प्रोग्राम एग्रीडेट हो चुका है। ये अभी रिसेंटली बात बता रहा हूं। तो वहां पर जो लोग थे वो दे आर जस्ट फॉर मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू। तो वहां पर साहब थे जो एक्रीडिटेशन के, उन्होंने कहा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर तो ये नहीं आ रहा। तो मैंने उनको ही लेटर दिखाया कि आपके लेटर है मेरे पास साइन हुआ हुआ, आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहा, इट्स योर वेब एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि फिर आप एक काम करें, आप ऊपर जाएं और वहां पर वेब एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास जाके आप जो है ना अपनी प्ली बताएं या अपना प्रॉब्लम बताएं। तो मैं सेकंड फ्लोर पे जाके वेब एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाके और मैं उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने कहा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि उन साहब ने हमारा भी काम रोका हुआ है, तो हमने उनका ये रोक दिया वेब एडमिन। तो दिस हाउ थिंग्स आर मूविंग। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको ये चीजें जो हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारा डायनेमिक लीडर जो है वसीम नजीर साहब, ही विल लुक आफ्टर, और वो देखेंगे कि इंजीनियर्स को वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। मैं ये उम्मीद रखता हूँ। रजिस्ट्रेशन के मसाइल जो हैं इंजीनियर्स के, जॉब्स के मसाइल हैं, वो टोटल आपको पता है सोशो इकोनॉमिक मसला है, उसको एड्रेस कर रहे हैं सर। कल हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर विजिट हुए और सर ने फैकल्टी और तमाम एकेडमिया और स्टूडेंट्स जो थे उनके साथ बिल्कुल लाइव हमारी बात हुई है, और सर ने उस वक्त स्टेज पे खड़े होकर बात की है और लोगों के सवाल जो थे एड्रेस किए। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं हमारा पैनल, प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप, तमाम पैनल और जो वाइस चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब के लिए कंटेंट्स कर रहे हैं, और जो भी गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स इस ग्रुप के बैनर तले कंटेस्ट कर रहे हैं, दे विल मेक चेंज, दे विल ब्रिंग चेंज, और इंशाल्लाह ताला आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेंगे, जैसे हमारे चेयरमैन साहब का विजन है, और पूरे पाकिस्तान से इस दफा हम वोट लेंगे इंशाल्लाह ताला। कराची जो है अभी ये बिगनिंग है, और आप सब लोग इनके साथ हैं और यहाँ बैठे हुए अपना टाइम निकाल के आए, तो ये इस बात का सबूत है कि कराची में
इंजीनियर्स चाहते हैं कि इंजीनियर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो, उनकी प्रोफेशनल जो एक्सीलेंस है उसको इन्हांस किया जाए। थैंक यू वेरी मच।